Hello everyone. This is a GATE CAC 2011 का question, okay? And this question is like very interesting, okay? Why I am saying this is interesting because this is like the blend of logicness and the logic concept and discrete math and like first order logic. This question is holistically very interesting, and you will love the way this question is framed, and it'll be like, yeah, something like this could also be possible. Let's get into solving this problem. Let me read out the question first. Okay, just a second, I will check. Okay, so let me read the question out for you. Okay, which one of the following options is correct? So we need to find the correct option. Given three positive integers, okay, x, y, and z, and a predicate. Okay, some predicate is given, and x, y, z is given. Okay, let me make a note for you here. Okay, in the solution, that x, y, z belongs to integers. Okay, this is capital Z. Okay, now, and a predicate, so we have a predicate like this. So p of x is our predicate, not of x equal to 1. Okay, and for all y there exists z. X equal to y times z implies y equal to x, and or y equals to 1. Okay, now जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली want to see it like break into parts. So always break into parts and then work. Let us break this question into parts. Okay, so one part is not of x equal to 1. ठीक है, and so this is one part. And another part is for all y there exists some z, at least one z, such that x equals y times z. Okay, which implies y equals x. Okay, or y equals 1. Acha, let me remind you that this is all one part. Okay, okay, and this complete is one part. So I will highlight this in some other color so that you will understand it. Okay, so this is one part, and this for all implies here. Now if you break this into parts, no, okay, let me change the color and I'll see. So this is one part. Okay, I'm highlighting it in pink color, or purple it is. Okay, it looks purple. Okay, this is one part, this whole thing is one part. Now इसका मतलब क्या है? Okay, not of x equal to 1 मतलब x is not equal to 1. This is our first interpretation. Okay, ये तो खत्म हो गया. If this is true, ठीक है, and this part should be also true, then only if you put anything true and true, then it will become true. If true and false, then it will be false. Okay, if I believe you know this and का logics. Okay, अब क्या है ना कि there is one problem. Okay, now you need to know this and implies का table. What is that? A implies B. I hope it is clear. Yeah, it is clear. A implies B अगर कभी है, ठीक है, when you can say this is true, okay, or false. तो when if for example a b का वैल्यूज है और a और b है, ये वाला टेबल एक भी बना देता हूँ. ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. ठीक है, अब ट्रू इंप्लाइज ट्रू, तो ट्रू होगा. ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा. और फॉल्स इंप्लाइज ट्रू, ट्रू हो जाएगा. फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू हो जाएगा. मतलब अगर ये पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ये हमेशा ट्रू होगा. इतना बात मेन क्रक्स ही है. ठीक है, क्रक्स क्या है? क्रक्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ. ठीक है, क्रक्स, ये जो क्रक्स है ना, बार बार ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये वाला अगर कभी भी बाई चांस अगर पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया, यहाँ पहला स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट है, ये वाला अगर फॉल्स हो गया ना, तो ये डेफिनेटली कंप्लीट थिंग ट्रू आ जाएगा. तो हमें चेक करने का तक जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानना है आपको. ठीक है, इसके आगे नहीं कुछ जानना है. फिर ये फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स कब होगा वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, वो चेकिंग के लिए ये यूज होता है. ये वाला केस जो है ना,
अगर पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब ये पूरा ही फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और ये ट्रू वाला ट्रू तो होगा, ये मतलब है, ठीक है। मतलब अगर हमको कभी भी जिंदगी में अगर कभी भी इम्प्लीकेशन में अगर कुछ चेक करना है ना, तो हमको दो चीज पता होना चाहिए। अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, बस इतना ही जानना है हमको, बस। अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। एक्स वाई जी जो है इंटीजर्स हैं, मतलब जो भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। तो हम इधर ऐसा मार्क कर देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइन बना देते हैं, जिससे ये हो जाएगा, ये मैं हटा देता हूँ, ओके। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब नेगेटिव नहीं है, ओके। जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, ओके। अब हम क्या करेंगे ना, बस इस पार्ट का तो हमें पता चल गया कि हमें एक्स को वन कभी नहीं लेना है, ठीक है। अब एक्स को वन नहीं लेना है, अब हम चलते इस पार्ट पे, ठीक है। इस पार्ट पे फोकस करते कि ये बता क्या रहा है, ओके। ये क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल वाई, मतलब हर एक वाई के लिए देयर एग्जिस्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे इसको समझना, वर्बली भी और मैथमेटिकली भी, ठीक है। तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा, ठीक है। फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट सम जी, एटलीस्ट वन जी, सच दैट x इक्वल्स y टाइम्स z, ठीक है। implies y इक्वल्स x, या तो y x के बराबर है और नहीं तो y 1 के इक्वल है। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना। अब इसको आराम से ब्रेक डाउन करते हैं पहले अपन। वो ब्रेक डाउन कैसे होगा, देखो। ये क्या बोल, अब मान लो कि हम जो क्या कर रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं कि x जो है ना, वो एक बाउंड्री कर रहे हैं, ठीक है। x 1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। x कैन नॉट बी इक्वल टू, ओके। मानते हैं 1 2 3 4, हम क्या करेंगे ना कि हम x को ना ऐसा दो तीन चार नंबर लेते हैं, ठीक है। 1 को रहने देते हैं, 1 नहीं ले रहे हैं ना x को, इसके लिए हम x को 1 नहीं लेते हैं, आराम से। इस क्वेश्चन को समझ लिया ना, तो बहुत सारा दिमाग आपका खुल जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि x को मैंने 2 लिया, ठीक है। अज्यूम मैंने x को 2 लिया, ठीक है। अब x को 2 लूंगा, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से 2 इक्वल्स टू फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट सम z, मतलब ये एक ही वैल्यू हो सकता है, ये मल्टीपल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब मल्टीपल वैल्यू जैसे 1 2 3, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, मान लें कि 1 हो गया y, ठीक है। y 1 हो गया, y 1 हो गया, तो 2 इक्वल्स टू 1 इंटू जी, जी का वैल्यू 2 हो जाएगा फिर, ठीक है। अब मान लो कि y का वैल्यू 2 हो गया, तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये वाला इम्प्लीकेशन देखो, अगर ये ट्रू हो गया, मतलब ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट हम जानबूझ के ट्रू बना रहे हैं, हमें बस इधर फॉल्स वाला देखना है, ठीक है। अब ये अगर हमने जब y का वैल्यू अगर हमने 1 माना था, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर हमने 2 माना तो x y इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ना ये स्टेटमेंट ना 2 पे काम कर रहा है, मतलब इट इज वर्किंग फॉर 2, इट्स वर्किंग फॉर 2, ठीक है। अब अज्यूम x जो है वो एक, ये तो x तो एक प्राइम हो गया ना, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ प्राइम का। अब मान लो कि 5 है, ठीक है। 5 है तो y का पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या होगा ना कि y अगर मैं 1 लूंगा, ठीक है, तो 5 इक्वल टू 1 इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्लिसिटली z को 5 होना पड़ेगा, मतलब y को 1 लूंगा तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, ये वाला ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू ट्रू इम्प्लाइज ट्रू हो जाएगा, मतलब ये ट्रू इम्प्लाइज ट्रू हो जाएगा, ये वाला केस, ठीक है। अब 5 को मैं इसको 2 लूंगा, तो z को ना मैं ले ही नहीं सकता हूँ, ये डज नॉट एग्जिस्ट में आएगा, क्योंकि z तो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर है ना, z इज पॉजिटिव इंटीजर, इट कांट बी लाइक 5/2, राइट। सो डज नॉट एग्जिस्ट। 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 भी नहीं ले सकता हूँ। अब मैं इधर इटरेट कर रहा हूँ वैल्यूज को, ठीक है। अब ये मान ली 3 हो जाएगा, तो z इधर भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ये सिंपल है, आराम से काम डाउन। 4 इंटू जी, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
अब फाइव इक्वल टू फाइव लेंगे, मतलब वाई इक्वल टू फाइव लेंगे तो जी वन हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो देख रहे हो ये प्राइम पे काम कर रहा है, ठीक है, ये प्राइम पे काम कर रहा है। ओके, अब मान लो कि कभी नॉन प्राइम लिए, ठीक है, देखता हूँ विजिबल है या नहीं। ओके काफी है, अब मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, मान लो कि थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं क्या, जिससे आपको बड़ा पिक्चर दिखता रहे। ठीक है, मान लो कि ना मैंने x इक्वल टू सिक्स ले लिया, अब ये तो नॉन प्राइम है, ठीक है, नॉन प्राइम है, तो क्या होगा वो देखो, ध्यान से देखो, x इक्वल टू वाई टाइम्स जी। y के पॉसिबल वैल्यूज क्या है, y के पॉसिबल वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब y इक्वल टू 1 लेंगे तो z का वैल्यू 6 आएगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ट्रू इम्प्लाइज ट्रू हो जाएगा ये वाला। अब x इक्वल टू अगर 2 लेंगे, ठीक है, तो z का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या होगा ना कि जैसे ही ये जो है ना x इक्वल टू 3 लेते ही, x इक्वल टू 3 मतलब लेते ही क्या होगा ना कि y जो है ना, y इज नॉट इक्वल टू x एंड y इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये दोनों हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो जाएगा। अब ये ट्रू इम्प्लाइज क्यों है, मतलब ये वाला, ये जो है ना, ये x इक्वल टू वाई इंटू जी, मतलब ये वाला वैल्यू ट्रू है और ये वाला वैल्यू फॉल्स हो गया। ये फॉल्स कैसे हो गया, मतलब y भी वो x के बराबर भी नहीं है और x के इक्वल भी नहीं है। वैसे ही अगर x इक्वल टू 3 इंटू 3 करेंगे, इधर भी x y x के बराबर नहीं है, y x के इक्वल, y इक्वल नहीं है उनके, मतलब ये वाला कंडीशन आ जाएगा। अब जैसे ही ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आएगा तो ये पूरा वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। अब ये पूरा वैल्यू फॉल्स होगा तो ये कंप्लीटली फॉल्स होगा, मतलब ये नॉन प्राइम पे तो कभी वर्क ही नहीं करेगा। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, अब इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये नॉन प्राइम पे वर्क क्यों नहीं करेगा, मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ आपको। अब मान लो कि बस सिंपल क्या कर रहे हैं वो एक बार देखते चलो, बस हमें x इक्वल टू वाई टाइम्स जी करना है और चेक करना है कि इसका इम्प्लीकेशन फॉल्स कब आ रहा है, ठीक है, और y इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये ट्रू है, ये वाला पार्ट ट्रू है और ये वाला फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीटली फॉल्स हो जाएगा। अगर ये कंप्लीटली फॉल्स हो गया ना, तो ये वाला जो प्रेडिकेट है ना वो फॉल्स हो जाएगा। अब ये फॉल्स कब होगा ना, ये हर प्राइम नॉन प्राइम पे फॉल्स हो जाएगा ये। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, x इक्वल टू, एक और एग्जांपल 10 लेता हूँ, x इक्वल टू 10 लेता हूँ, तो 10 इक्वल टू y के पॉसिबल वैल्यूज फॉर ऑल y, मतलब 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 1 से लेके 10 तक। अब फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 1 इंटू जी क्या होगा, 10 होगा। अब तो जो y का वैल्यू है ना वो 1 के बराबर है, मतलब यहाँ ट्रू हो रहा है, ठीक है। 10 इक्वल टू 2 पे चेक करो, इंटू 5 हो जाएगा, मतलब y जो है वो 2 है और ये 2 जो है ना वो x के बराबर नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू x इज 10, देन दिस पार्ट इज फॉल्स। y इज नीदर इक्वल टू 1, y इज ऑल्सो नॉन 1, मतलब ये भी फॉल्स है। अगर ये दोनों फॉल्स है तो पूरा फॉल्स है, तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये कंप्लीटली फॉल्स हो जाएगा। ओके, ध्यान से एक बार समझ लो, देखना मैंने क्या एक्सप्लेन किया। अब बस मतलब ये जो प्रेडिकेट है ना हमारा, वो तो सिंपल है, ये तो नॉ प्रेडिकेट जो है ना वो नॉट वन है, मतलब वन नहीं है, एंड प्राइम है, मतलब प्राइम है मीन्स दिस प्रेडिकेट स्टेटमेंट इज इक्वल टू सेइंग द नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू वन एंड इट शुड बी अ प्राइम। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंगली ऑप्शंस देख लो, ठीक है, ऑप्शंस देख लो। ओके, अगर लिख लेना कहीं, अगर कॉपी करना है तो लिख लेना, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अब कोई बोल रहा है कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन बताओ और ऐसा डेफिनेशन कोई दे रहा है तो मतलब ब्रिलियंट है ये, बहुत इंटरेस्टिंग और ब्रिलियंसी है ये। ठीक है, अब ऑप्शंस चेक कर लो, बस एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, ग्रीन पेन लेता हूँ मैं, ठीक है। पी ऑफ एक्स बीइंग ट्रू, मतलब पी ऑफ एक्स अगर ट्रू है मीन्स एक्स इज अ प्राइम। ओके ट्रू, ठीक है। वैसे हम वन को तो कभी कंसिडर करते नहीं है, फिर भी ओके ठीक है कंसिडर कर लेते हैं। थोड़ा मैं इसको कम कर देता हूँ,
ठीक है, ये ए तो ट्रू है, क्या मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, एमएसक्यू भी हो सकता है। ठीक है, पी ऑफ एक्स अगर ट्रू है मतलब एक्स इज अ नंबर अदर देन वन, मतलब वन के अलावा कोई नंबर है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो है अदर देन वन मतलब थ्री, थ्री तो हो सकता है लेकिन फोर नहीं हो सकता, नॉन प्राइम नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पी ऑफ एक्स इज ऑलवेज ट्रू इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, नो एक्स का वैल्यू अगर फोर हो गया तो ये गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है। पी ऑफ एक्स अगर ट्रू है मीन्स एक्स हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स अदर देन वन एंड एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स अगर ट्रू है मतलब मान लो कि ट्रू है मतलब प्राइम है, प्राइम प्राइम है, ऐसे आराम से एनालाइज करना। ठीक है, तो एक्स मतलब एक्स फाइव जो है उसका एग्जैक्टली टू फैक्टर्स है अदर देन वन एंड सिक्स, मतलब इसका तो एक वन एंड फाइव इटसेल्फ ही फैक्टर्स है, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स अदर देन मतलब इन दोनों को छोड़ के और दो फैक्टर्स हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो ऑप्शन है मतलब ऑप्शन ये हमारा सही है। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आई होप ये दिख रहा हो, हाँ दिख रहा है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना, और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करूं या इसको इसका इंटरप्रिटेशन या इसका जो आइडिया है उसको मैं ब्रेक डाउन करूं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। अगर आप कुछ डाउट्स बताते हैं तो मैं डेफिनेटली उनको आंसर करूँगा। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन को समझो, इसको दोबारा देखो एक बार, और देखो कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं उन पे ध्यान दो, और ये और प्रैक्टिस करते रहो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इस सब्जेक्ट में उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।